Good morning, participants. On behalf of Ministry Affairs and Sports, and behalf of Khelo India, and behalf of LNCP, and on behalf of respected Dr. G. Kishore sir, I welcome you all for this session. And today we have a special guest and speaker, Sri Dr. Gajanana B. Assistant Professor and Principal Postgraduate Studies and Research in Physical Education, Kuvempu University. About him, sir is a passionate physical educational professional and about still greater achievements like he's a rank holder in in Karnataka University for his BPEd rank. The award given to him is Sri K.G. Nadiga Gold Medal for securing rank, and he is also an alumni of LNCP. He secured a first rank in MPEd. For his achievements, he received an award known as Lieutenant Colonel KSC Nair Gold Medal for obtaining a rank here. And sir published a number of articles. He has published 63 articles, uh, research articles in reputed journals, national as well as international, and represented 30 national as well as international seminars and seminars as well as conferences and workshops. He has an experience of 14 years in this field as a assistant professor and a principal, and he has published 3 books in the field of physical education and sports, and uh, he completed a minor research projects funded by Kuvempu University. He has been actively involved in preparing of physical education textbooks for 6th to 10th standard students of Karnataka state since 2007. He was worked as the member of textbook committee formed by Government of Karnataka, chairman of 8th standard physical education textbooks by DSERT, a scrutiny member for 10th standard physical education textbooks, and also he has been the chairperson for review committee of physical education textbooks for 6th to 10th standard by Karnataka Textbook Society, Government of Karnataka. Gajanana Prabhu B has been handling BPEd and MPEd theory as well as practical classes at Kuvempu University since 2006 onwards. His area of specialization is sports medicine, athletics care and rehabilitation, adopted physical education and exercise physiology. In discipline wise, he is a good volleyball player, basketball player, handball player. He has represented Karnataka state in handball as well as in volleyball also, and he is a good a volleyball player, represented All India University also, and he is more specialized in yoga, track and field events also. Further, he has the experience of handling Kuvempu University volleyball team also. Sir, on behalf of Ministry Youth Affairs and Sports, Khelo India and LNCP, and behalf of our respected Dr. G. Kishore sir, I welcome you for this session, sir. Thank you very much, sir. Participants, pay attention today for sir's expert opinion on this session. So, I request respected Gajanana Prabhu sir to take over this session. Thank you very much, sir, for your presence here. Please, over to Gajanana Prabhu sir. Thank you, Dr. Sanjeev S. Patil. Thank you, sir. You can share that PPT and you can start, sir. Please. Audible clearly? Whether I'm audible, sir? Is it Yeah, clear? audible, sir. Audible, sir. Okay.
Good morning, all of you. Thank you, Dr. Sanjeev S. Patil, sir, for introducing me, and thank you, Ministry of Youth Affairs and Sports, and SAI LNCP for giving me this opportunity. First of all, let us see. We have a unique topic today: community officiating, general principles. So, since last 15 days, we have been discussing various issues related to physical education, health, recreation, physical activities, and many such activities, health related physical fitness, promoting sports, promoting youth, promoting adolescents, and various other topics like injuries, management of injuries, prevention of injuries, and many things related to physical aspects, and very particular about physical education, sports, health, fitness, and all these things. Today we have a unique topic, and the most important thing is that this topic is not overlapping anywhere else. So it is very unique. And since last 15 days, what we have discussed is something little bit different from what we have discussed for the last 15 days. So we all know physical education teachers and coaches, we have multifaceted role to play. We have a lot of role to play. We are like all in one. We are physical education teachers. We are recognized as physical education teachers in schools and colleges. We have to do the work of a trainer. We know that we have to train them. We have to improve their health related as well as skill related physical fitness. We need to coach in 1 or 2 games, or even more sometimes. We need to give specialized training, that is called coaching, in particular sports or games or athletic events or swimming or sometimes gymnastics or many events like that, for that matter, for competitive sports especially. And physical education teacher need to play a role of a manager. He will have to manage the facilities, he have to manage the human resource and many other things, records, registers, all these things. He has to do it himself. And even physical education teacher has to play the role of a psychologist sometimes. He has to understand, he has to read the mind of people around him, especially students. And most importantly, when students participate in competitions, he has a unique role to play altogether. And sometimes most of the times, physical education teacher has to play the role of a nutritionist also. Students come with a lot of query to reduce body weight, to do many things. So nutritionist role also has to be played. And many times during injuries, in rehabilitating those injuries, physical education teacher has to play the role of a physiotherapist as well. So just see how multifaceted his career is, his profession is. And many more such activities are there. To list a few I have done. Officiating is also one of the most important duty of a physical educationist. We cannot deny this matter. So we'll have to look at the officiating aspect also. So most of the physical education teachers, we conduct intramurals. We know that in that particular circumstance, we'll have to officiate. We cannot take the help of other teachers because we cannot expect them to help us in officiating, especially because they have very limited experience, and we are fortunate if 1 or 2 players are there in our schools in other subjects, or otherwise only a physical education teacher has to officiate himself for all, or at least he can train some students. Otherwise, it is his sole duty to officiate during intramural. And there are extramurals, inter-school competitions, intercollegiate competitions going around him throughout the year. We know that. So during that time, according to his expertise, he will have to officiate, he have to take the lead. He has to take the lead of officiating. Sometimes he has to obey the seniors. He has to do various duties relating to officiating. That may be, he may be a referee, he may be an umpire, he may be a scorer, he may be a line judge, he may do anything. He may do many things related to officiating. So extramurals, it gives him a lot of exposure. When he goes out, he's under scrutiny. His skills are under scrutiny every time. So extramurals, he will have to officiate. Sometimes he has to move out of his comfort zone. Sometimes he may be asked to officiate in a game which he is not aware of. He has to give the subordinate role. So these are the things he has to do. And sometimes what happens, we can in very less circumstances, we can take the help of sports federations also, maybe district association or state association, or
even national level federations also we can take the help of. But most of the time, it is the duty of the physical education teacher or the coach to involve himself in the process of officiating and do justice for the sports and games. So that is one thing. Another important thing we'll have to keep in our mind is, if we call people from association, district association or federation, it doesn't look like nice, because it shows the inefficiency of the physical education teacher. So it is better we do it ourselves, we improve ourselves, we gain experience, and over a period of time we build a team and do this officiating ourselves. And if you call the federation people, then again expenses are involved. As you all know, resources are very limited, and we cannot bear such expenses, unwanted experiences. If at all you have your own group of officials, then it is very easy to do it at our own. So there are many problems also as far as officiating is concerned. There are a lot of problems, there are a lot of issues, there are a lot of challenges. This can be a right appropriate term to use. There are various challenges also. So what are those challenges? So I am in a postgraduate department of state-run university. Here we have BPEd and MPEd course. As a department, we send our students for officiating. So yearly they go for around 20 to 30 such events, starting from zonal level, taluk level, district level, even state level. So for such events, our students go for officiating. They find a lot of difficulties there. So they find it is very difficult. The situation is not at all conducive for officiating. So that is one thing. And another instance I would like to quote here. Once I happened to be a chief guest for a inter-school competition. There, along with me, there was a seer, Swamiji, who had come for that inauguration of that particular inter-school competition. I was the chief guest. And Swamiji, in his address, he told, while addressing the physical education teachers particularly, he mentioned, please mind your tongue. And you are observed by the school children. You please mind your actions. So please be very careful while officiating. So he very particularly mentioned it to physical education teachers. Just see what the society is observing in physical education teachers. So maybe he has observed some quarrel between teachers or something of that sort. So because of that, he mentioned it particularly. So now I would like to give a small activity to all the participants. So kindly in the chat box, kindly type the problems that you have faced during your experience as an official. In your past career, you have officiated in many situations, and you might have experienced some adversities or problems. Kindly type it in your chat box so that we can see what are the problems. I have certain problems with me here, but I would like to do a small activity and type it in the chat box, please. So मैं समझता हूँ सबको मेरी बात समझ में आ रही है. आप लोग ऑफिशिएटिंग के लिए जा रहे होते हैं, कई बार गए भी हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं. सो उस तरह के प्रॉब्लम्स जो है आपके मन में है कई दिनों से कि ऑफिशिएटिंग में लगातार होता रहा है, हो रहा है और होता भी रहेगा आगे. सो वैसे प्रॉब्लम को आप जरा चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. बहुत अच्छे कई सारे इधर रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं. पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, फाइटिंग होता है डिसीजंस के ऊपर, और ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है. तो पी टीचर्स के बीच में गलतफहमियां होती हैं और कोचेस इंटरफेयर करते हैं और कई सारे नेग्लेक्ट करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं. कई सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. बहुत खुशी हो रही है मुझे. फाइटिंग ऑन डिसीजंस, देखिए वायलेंस भी होता है कई बार. सो पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट, कई सारे लोगों ने लिखा है कि पेरेंट्स भी आर्ग्यू करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स नेग्लेक्ट करते हैं. बहुत अच्छी बात, सही बात है. और मिस्टेक में रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं, तब क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है. और रूल्स में जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, प्लेयर्स को पता नहीं रहता है. प्लेयर्स को कब पता रहेगा कि उनके टीचर्स उनको बताएं, तभी उनको पता लगेगा ना.
तो जब टीचर्स को ही पता नहीं है, जब वही वर्कशॉप्स और वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, तो वो उनको अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे देंगे, वो एक प्रॉब्लम है। सो कई सारे प्रॉब्लम्स इधर टाइप हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। बहुत खुशी हो रही है मुझे। सो इस बैकग्राउंड में हम आज का प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, तो कम्युनिटी ऑफिशिएटिंग जनरल प्रिंसिपल्स। देखिए, द पर्पस ऑफ स्पोर्ट फॉर मेनी इज टू विन। हमको पता है, कोई भी इंट्राम्यूरल हो, एक्स्ट्राम्यूरल हो, हम बता सकते हैं फिलॉसफी, खेलना जरूरी है, भाग लेना जरूरी है, जीतना जरूरी नहीं है। वैसे हम कई सारे फिलॉसफी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है जीतना। हर कोई जीतने के लिए ट्रेनिंग करके आता है और कोशिश करता है और बहुत प्रैक्टिस करके वो जीतने की हर कोशिश करता रहता है। But we need to reinforce that the manner in which this objective is achieved is also very important. किस तरीके से हम जीतते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो किस तरीके से वो जीत रहे हैं, किस तरीके से उनको जीतना है, वो जरूरी है। तो इस जीत और हार के बीच में हमको ठीक तरीके से कंपटीशन चलाना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस हिसाब से ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग एक लोगों ने एक कमेंट में आया हमको कि ऑफिशिएटिंग में मिस्टेक हो जाता है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है करके एक भाई साहब ने लिखा है। सो उसी का एक एग्जांपल हम अभी एक वीडियो के दौरान देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को जरा देखिए। True Olympic or chair at the moment. Certainly it's been true of the England team. Seen that much of Portugal with Trevor Stevens. Maradona just walked away from bottom left. Valdano. Feeling offside. The ball came back off Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. The little man who started it by walking past Glenn Hoddle. That's where the ball came from Hodge. Maradona has continued to run forward. And the goal is given. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about? सो आपने देखा होगा, सबको इस बात की जानकारी भी होगी मैराडोना ने किस तरीके से 1986 फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल के दौरान इंग्लैंड के विरुद्ध एक गोल किया था। 0-0 से चल रहा था सेकंड हाफ, तो एक बॉल मिला उनको, लेकिन गोलकीपर उनसे 20 सेंटीमीटर लंबे थे, तो उनको टैकल करना बहुत मुश्किल था। उसी टाइम में मैराडोना जी ने क्या किया, अपने हाथ को इस्तेमाल किया। एक्टिनो करना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया वैसे। तो हेडिंग करने के दौरान अपना हाथ लग गया और गोल हो गया। सो रेफरी ने गोल दे दिया। उससे पहले मैराडोना जी ने क्या किया, सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। सो इतने महान खिलाड़ी हैं, सो ऑफिशियल ने या रेफरी ने सोचा होगा कि कुछ नहीं हुआ होगा वैसा, वो बहुत ठीक ठाक से खेले होंगे, गोल किए होंगे, इस वजह से उन्होंने गोल दे दिया। मैराडोना अपने देश के लिए एक वर्ल्ड महान खिलाड़ी थे, लेकिन उनको एक मैच जितवाना था। सो उन्होंने भी उस बात की जिक्र नहीं की और एडमिट नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने लाइंसमैन को देखा, असिस्टेंट रेफरी को देखा, तो उन्होंने भी ओके दे दिया, तो गोल मिला उनको। सो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बहुत आर्ग्यू किया, फिर भी कुछ चला नहीं। लेकिन वो बात जो है वो बहुत बड़ी इश्यू हो गई मीडिया में, इंटरनेशनल लेवल में बहुत इश्यू हो गई। हम यहाँ दो बात को गौर देना पड़ेगा हमको। एक बात, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो है वो अगर एज होता है तो रेफरी के डिसीजन तक वो रुकते ही नहीं थे, वो अपने आप चले जाते थे, हमको पता है, वैसे भी एक स्पोर्ट्समैन है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, हम आज के टॉपिक को मद्दे नजर रखते हुए हम एक ये सोच सकते हैं कि
क्या ऑफिशियल को डिसीजन देना था या जांच करना था, क्यों ये डिसीजन, ये गलत डिसीजन आया। सो उस दौरान तो वो टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था, सो फिर भी गलतियां हो जाती हैं। मैं गलती के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं जब ऑफिशिएटिंग करते हैं तो गलती जो है जितना कम हो सके उतना करनी चाहिए। सो हम कोशिश ये करें कि गलती ना हो, लेकिन अगर होता ही है तो हमको क्या करना है ये सब अब आप इस सेशन में देखने जा रहे हैं। सो ऑफिशिएटिंग, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। फॉर सक्सेसफुल स्पोर्ट्स एंड गेम्स कॉम्पिटिशंस ऑल कॉम्पिटिटर्स शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल। जैसे स्पर्धा होती है तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जीतने की। ऐसा नहीं कि हर बार कोई एक ही टीम जीता है या पिछले साल जो जीता है वही जीतेगा इस साल, ऐसा कुछ नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये बात हमको समझनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस बिकम एसेंशियल। अगर एक स्पर्धा होनी है तो हम सबको मालूम है नियम होने ही चाहिए, नियम के बिना कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता, कोई खेल क्रीड़ा नहीं हो सकती। सुपरविजन रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो जब हम वो रूल को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, सो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक सुपरविजन चाहिए, एक देखरेख के लिए कोई आदमी चाहिए या फिर कोई अथॉरिटी चाहिए जो स्पर्धा ठीक तरह से चले और सुपरविजन हो और सभी रूल्स जो हैं उसको लागू किया जाए। सो टू बी सुपरवाइज्ड बाय सुपरवाइजर्स कॉल्ड ऑफिशियल्स। सो उन लोगों को ऑफिशियल्स या अधिकारी बोलते हैं। सो क्रीड़ा या खेल को चलाते हैं। तो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स, अलग अलग नाम है उनके। रेफरी हो सकते हैं, अंपायर्स हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, अलग अलग गेम्स में अलग अलग नाम है उनके, ये सब हमको पता है। सो वो कौन है? वो ऑफिशियल जो है उसको ए न्यूट्रल पर्सन बोलते हैं, तटस्थ या फिर निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए विथ एब्सोल्यूट पावर्स। उसको ज्यादातर पावर्स होते हैं और वो ऑब्जर्व्स द प्रोसीडिंग्स एंड गिव्स डिसीजंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। सो वो बाउंड्री के अंदर, नियम के बाउंड्री के अंदर सब रूल्स को लागू करते हुए वो क्या करता है, सभी इंटायर प्रोसीडिंग्स जो है, जो चल रहा है खेल, उसको ऑब्जर्व करके वो अपना डिसीजंस बताता है। सो उन लोगों को ऑफिशियल्स बोलते हैं। सो हमको पता है सक्सेसफुल ऑफिशिएटिंग कैसे होता है। सो हमको बीपीएड एमपीएड में बताया गया है, लेकिन फिर भी हमको ये जाननी चाहिए क्या क्या क्राइटेरिया है एक सक्सेसफुल ऑफिशिएटिंग के लिए। रूल्स नॉलेज। सो हम सबको हर साल या फिर 2-3-4 साल में एक बार रूल्स चेंज होते रहते हैं, एडिशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। सो इट इज आवर ड्यूटी to keep ourselves abreast of the latest rules and regulations. So it's not that we have learned it in 1980s. कुछ गेम है हमने 1980s में पढ़ा था बीपीएड में एमपीएड में, अभी हमको कुछ याद नहीं है, हमको जो पता है उसी को हम चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। और मैकेनिक्स, सो हर गेम का एक अलग मैकेनिक्स है। खो खो का अलग मैकेनिक्स है, कबड्डी का अलग मैकेनिक्स है, वॉलीबॉल का अलग मैकेनिक्स है, फुटबॉल का अलग मैकेनिक्स है। हर कोई गेम का अलग मैकेनिक्स होता है ऑफिशिएटिंग का, कि कुछ गेम में आगे पीछे साथ साथ चलते हैं, पैरेलल जाते हैं। कुछ गेम में एक ऑफिशियल आगे जाता है, एक पीछे रह जाता है, और अलग अलग एंगल से देखते हैं। कुछ में 2 है, कुछ में 3 है, कुछ में 4 है, कुछ में एक आधी ऊपर रहता है, कुछ में एक नीचे रह जाता है। सो अलग अलग एंगल से हमको ऑफिशिएटिंग करना पड़ता है। सो वो मैकेनिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको। सो there is no wrong time for learning. You can learn the officiating of any game at any age. So this you keep in your mind. आप किसी गेम का भी ऑफिशिएटिंग कभी भी सीख सकते हैं, अगर आपको पैशन है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वो सीखने के लिए कोई एज नहीं है। फिजिकल फिटनेस एंड पोस्चर बहुत जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये बता नहीं सकते मुझे एज हो गया, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ लेकिन मेरा रिटायरमेंट अभी 5-10 साल है, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे फुटबॉल, हॉकी में आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, आगे पीछे जाना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। देखिए अभी गोल कैसे हुआ, हाथ लग के गोल हुआ लेकिन वो नजरअंदाज हो गया। सो ये सब
होने का चांसेस है। इस वजह से आपको अगर फिटनेस है, देखिए खो-खो में भी कितना फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है ऑफिशियल्स को, जैसे डॉजर जाता है उतना ही फास्ट उनको भी जाना पड़ता है। और पोस्चर देखिए, आपको एक स्थिति कायम करनी पड़ेगी, सब आपको देख रहे होते हैं, सो इस वजह से आपको आपका पोस्चर भी ठीक रखना पड़ता है। और ट्रेन्ड, सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, देखिए सो ट्रेंड होना चाहिए आपको। मैंने कई बार पहले बताया आपको, रूल्स चेंज होते रहते हैं, वर्कशॉप होता रहता है, गवर्नमेंट के तरफ से वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें हमको बहुत इंटरेस्ट से, बहुत एंथुजियाज्म से भाग लेना पड़ेगा। सो ये नहीं कि गए, पार्टिसिपेशन अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले लिया, वापस आ गए, ऐसा नहीं। आपको आप अगर ऐसे वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको बहुत कंसंट्रेशन करके सब सीखना है और डिस्कस करना है। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए। साल में एक बार ऐसा होता है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सर्टिफाइड, सो स्टेट लेवल रेफरी एग्जाम होता है, नेशनल लेवल रेफरी एग्जाम होता है, स्टेट लेवल एग्जाम तो हर जगह होता रहता है। आप जरूर जाइए, वर्कशॉप में भाग लीजिए, एग्जाम में भाग लीजिए, आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसको आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, आपका वेटेज भी ज्यादा होगा सोसाइटी में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो सक्सेसफुल ऑफिशिएटिंग की है, वो है एक्सपीरियंस। सो ये घर में बैठ के या किताब पढ़ के नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ। सो इसके लिए आपको ऑफिशिएट लगातार करता रहना पड़ेगा। किसी भी ताल्लुक लेवल कंपटीशन हो, अगर आपको कोई बुलाता है तो आप उसको एक मौका समझिए। रात को फ्लडलाइट में हो, डे में हो, कभी भी हो, लोकल टूर्नामेंट हो, ओपन टूर्नामेंट हो या डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट हो, जो भी हो, अगर कोई भी टूर्नामेंट हो, आपका कोई स्मॉल रोल भी हो, तब भी आप एक काम कीजिए, आप भाग लीजिए और एक्सपीरियंस जताते रहिए, आप एक्सपीरियंस लेते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन। तो संवहन, जो आप कुछ कुछ बातें आप मुंह से बोल के कम्युनिकेट करते हैं और कुछ बातें आप बिना बात किए हुए ही कर लेते हैं, आपके सिग्नल से, आपके विजिल से, आपके सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। और मैकेनिक्स एक बार फिर आ गया। टेक्नोलॉजी से भी देखिए, ये अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर किसी चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है। हम ऑफिशिएटिंग में इसको दूर नहीं रख सकते, और टेक्नोलॉजी का जो हेल्प है उसको लेना पड़ेगा, ऑफिशिएटिंग को और अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपके नजर में रहनी चाहिए। आजकल स्पेक्टेटर्स जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, पेरेंट्स जो है, कोचेस जो है, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। सो आपकी गलती जो है वो सामने आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वजह से आप बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको ठीक से ऑफिशिएटिंग करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और जो भी रूल्स है उसको ठीक से अप्लाई करना पड़ेगा। और एटीट्यूड, देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हैं प्लेयर्स के सामने, कोचेस के सामने, पेरेंट्स के सामने। देखिए आजकल एक दो बच्चे हैं तो पेरेंट्स आ जाते हैं कंपटीशन में भी, सो स्पेक्टेटर्स हैं, उन सब से आपका लगाव जो है, आपका जो एटीट्यूड है वो सही रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और स्क्रीन के राइट तरफ आपको क्वालिटीज ऑफ ऑफिशियल्स दिए गए हैं। हमको पता है ये सब क्वालिटीज जो क्या क्या है। कंसिस्टेंसी, लगातार एक ही तरह का डिसीजन आना चाहिए, कभी अप्स एंड डाउन्स होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, इधर एक ही तरह का डिसीजंस आने चाहिए। और जजमेंट, जो फैसला सुनाना है एज एन ऑफिशियल, तो कोई कोर्ट जज से कम नहीं है। एक बार जजमेंट दे दिया तो एक टीम जीत भी सकती है, हार भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ये सब चीजें इधर इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, स्थिरता, जजमेंट, निर्णय, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षपात, और उसको क्या बोलते हैं, निष्पक्षतावाद। सो ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। you have to give all the decisions objectively. You should not your decisions should not be biased at any moment, so keep that in your mind. So कुछ बार क्या होता है, हमारे गांव का टीम रहता है, हमने ट्रेन किए हुए बच्चे रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसको कभी भी भूलना नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज, मैंने बताया आपको, प्लेयर्स आपके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं,
वो प्लेयर्स आपके ऑडियंस आपको देख रहे होते हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और धैर्य भी होना बहुत जरूरी है। और आपको शांत रहना है, कभी भी आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, हमेशा आपको शांत रह के काम करना है। अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, आपकी तरफ कोई उंगली दिखा रहा है, आपसे कोई ऊंचे आवाज में बात कर रहा है, तब भी आपको शांत रहना चाहिए, वरना क्या होगा, वायलेंस हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। फेयरनेस, सो न्याय निर्णय देना चाहिए, हमेशा न्याय निर्णय देना चाहिए और कभी भी गलती या फिर कोई भी तरह का जो माल प्रैक्टिस है उसके लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और पोलाइटनेस, सो सभ्यता से, विनम्रता से काम करना है। सो जब हम दूसरों से बात करते हैं, प्लेयर से बात करते हैं, और या फिर हम फेलो ऑफिशियल्स, हमारे साथ जो है ऑफिशियल्स, उनसे जब हम बात करते हैं तो हम विनम्रता से पेश आना चाहिए। कोऑपरेशन, सहयोग, सो हमको सहयोग लेना है और सहयोग देना भी है। दूसरे लोगों से, कोचेस से, टेबल ऑफिशियल से, सबसे हमको सहयोग से बर्ताव करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, देखिए आपको ठीक से यूनिफॉर्म पहनना, नीचे आ रहा है वो अटायर करके, सो यूनिफॉर्म पहनना, शूज पहनना और फिर विजिल लेके आना, आप ठीक से अपना ढंग से पेश आना, ये सब बहुत जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म, हर कोई गेम का अपना ही एक एक ड्रेस होता है, उसको भी आपको जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा मिरर में ऑफिशिएटिंग करने जा रहे हैं तब। एक और बात है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये भी बहुत जरूरी है, भावनात्मक बुद्धि। सो सिचुएशन को हमको जांच लेना चाहिए। Within a fraction of second, we should understand the situation. We should understand the emotions of players. So a lot of emotions are involved in competitions. We all know that, and sometimes we have to respect the emotion and we have to deal it very carefully. बहुत जागरूकता से उनको सब डील करना चाहिए। और आपका appearance, so appearance बहुत ज्यादा बोलता है आपका। मैंने जैसे बताया, आपका ड्रेस जो है, आपका पर्सनल इक्विपमेंट, वो सब बहुत जरूरी है। आप कैसे दूसरों के सामने पेश आते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, वो सब बहुत जरूरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, पोज, मतलब स्थिति, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे दौड़ते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर आप अच्छा ऑफिशिएटिंग करते हैं तो बाहर आने के बाद आपको सब कंग्रेचुलेट करेंगे, बहुत प्रेज करेंगे। अगर आपने गलती की तो आपको बहुत बातें सुनने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड, जैसे मैंने बताया, मनोदृष्टि, सो आपका एटीट्यूड ठीक रहना है। एंड ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड बाय अ स्पोर्ट रेगुलेटिंग बॉडी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको बताया, आपका वेटेज ज्यादा करेगा और आपकी तरफ उंगली दिखाना कम हो जाएगा और आपसे आर्ग्यूमेंट भी कम हो जाएगा। सो आप लगातार ट्रेनिंग लेते रहिए और सर्टिफिकेट भी लेते रहिए। आप स्टेट लेवल का ऑफिशिएटिंग एग्जाम के बाद नेशनल लेवल ऑफिशिएटिंग एग्जाम के बारे में आप सोचिए और उसमें भाग लेने के लिए आप कोशिश कीजिए और उसको पास भी कीजिए, तो बहुत आपको उसमें हेल्प भी होगा। कुछ लोग इसको एक मतलब अपने पार्ट टाइम में ये काम करते रहते हैं, सो पैसा भी मिल जाता है ठीक ठाक इसमें ऑफिशिएटिंग करने में, और आपको सम्मान भी मिलेगा। चार लोगों से आपका पहचान भी होगा, दूसरी जगह जाने को मिलेगा, आपको प्लेयर्स का परिचय होगा। ये सब बहुत एक्चुअली एक चैलेंजिंग और बहुत ही एक्साइटिंग जॉब है ऑफिशिएटिंग। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज हमको याद रखनी है, थोड़ा सविस्तार से इसको जानने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिशियल्स। सो अधिकारी लोगों का जो खेल कूद चलाते हैं, उनका जिम्मेदारी क्या है। सो खेल के पूर्व में कुछ जिम्मेदारियां हैं, खेल के दौरान कुछ जिम्मेदारियां हैं और खेल के पश्चात कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हम एक एक करके अब देखेंगे। प्री गेम, नो द मैनुअल। सो गेम के पूर्व में, पहले गेम कंपटीशन जाने से पहले, सो आपको रूल बुक ठीक से देखनी चाहिए। सो हमको पता है 3-4 साल में एक बार रूल्स चेंज होते रहते हैं, सो उसको हाईलाइट भी करके दिया जाता है। पहले तो बहुत मुश्किल था रूल बुक लेना, लेकिन आजकल तो बहुत ही इजी हो गया है। इंटरनेट में आप गूगल में जाइए, फुटबॉल या सॉकर या हॉकी रूल पीडीएफ करके टाइप कीजिए, आ जाएगा। प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको लगातार देखते रहिए अपने फ्री टाइम में, वो बहुत ही आपको हेल्प होगा।
So cover it frequently during the season for game situation. अगर गेम सीजन स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एक बार आप ठीक ठाक देख लीजिए, इंटरनेट में भी देख लीजिए, प्रिंट आउट लेके, वो किताब में भी, मैनुअल में भी देख लीजिए. रिव्यू एज पार्ट ऑफ योर प्री गेम कॉन्फ्रेंस. सो आपको आपके जो ऑफिशियल टीम है, अगर आप एक फुटबॉल टूर्नामेंट चलाने के लिए जा रहे हैं, सो आपके पास 10 ऑफिशियल्स हैं, सो सबको साथ में बिठाइए और उसके बारे में एक आधा घंटा या 1 घंटा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले कॉन्फ्रेंस कीजिए. वो बहुत आपको हेल्प होगा. और अराइविंग ऑन टाइम. I guess. Is it okay, sir? Everything is okay now. सुनाई दे रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? Okay, sir. ठीक है, हम आगे का डिस्कशन करेंगे. So हम प्री गेम एक बार फिर इसको हम देखेंगे. जो खेल शुरू होने से पहले जो काम करना है आपको, फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ फेलो ऑफिशियल्स. एक कई बार क्या हो जाता है, हम अलग अलग स्कूल से आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, तो एक कंपटीशन हमको करना है, कंडक्ट करना है. बढ़ता है. ओके. सो फेलो ऑफिस अलग अलग जगह से आएंगे ऑफिशियल, सो उनसे एक अच्छा रैपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है. सो इससे क्या होता है, कई सारी तकलीफें हम दूर रख सकते हैं. सो अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा, तो कोई भी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं. So we could hear it, sir. This Sujit Panigrahi. यस सर. So we could hear it completely. So आप ये पूरा सुन पाए सबने, तो कोई ये नहीं. हम आगे जा सकते हैं ना सर? Yes sir. It was fully audible, sir. There's no problem. There's absolutely no problem. आप अकेले थे तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था. हाँ ठीक है सर. इसीलिए ठीक है. नहीं, मुझे बताया गया कि अभी हम आपके साथी हैं सर. हाँ. अभी आप सुनाई दे रहा था सर, फुल्ली सुनाई दे रहा. ठीक है सर. थैंक यू सर. और एक जरूरी बात है, स्कोर शीट्स जो है और क्लॉक्स जो है. सो कई गेम में 1 क्लॉक होता है, कई गेम में 2-3 क्लॉक होते हैं. सो उन सबको एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगी तो आगे जाके हमको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा. इस वजह से आने के बाद तुरंत बाद एक बार क्लॉक्स देख लेनी चाहिए, स्टॉप वॉच देख लेनी चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंटली स्कोर शीट्स जो है वो सब रेडी करना पड़ेगा. प्लेयर्स के नाम सब लिख के हमको रेडी करना पड़ेगा. इस वजह से थोड़ा जल्दी जाना बहुत जरूरी है, और इसको ठीक से फिल करना है, और ठीक से कैप्टन का जो है या फिर कोच का जो है उनका सिग्नेचर भी लेना बहुत जरूरी है. ये सब ड्यूटीज जो रहती हैं उनकी. सो कोई भी स्किप करना इधर नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग गेम में क्या होता है? सो ड्यूरिंग गेम सिचुएशन में जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है. प्री गेम से डबल या ट्रिपल भी हम समझ सकते हैं. आप एक वीडियो देखिए, थोड़ा फनी है वो, और लेकिन बहुत अच्छा मैसेज भी है उसमें. आप जरा उसको देखिए और हम फिर डिस्कशन में आएंगे.
Okay, after watching this video, we all know what happens. So this is at the international level, but at the grassroots level also, we find certain situations wherein this video has to be observed from the point of view of an official. That is very important. So people, players try to mislead the officials. They pretend many things, and they create a situation wherein to gain an advantage. So all these things are possible. We should keep this in our mind. And during games situation, our responsibility is to be indifferent. रिजल्ट जो भी हो, आपको उसमें उससे कोई आपका मतलब नहीं होना चाहिए. कोई भी जीते, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वो आपका रवैया होना चाहिए. और आपको इम्पार्शियल रहना, तटस्थ रहना चाहिए. हमेशा आप तटस्थ रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी. So that is very important. Maintain a good and wide field of vision. So आपको दृष्टि का एक व्यापक क्षेत्र रखना चाहिए. So आप सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं देख सकते. आप एक आदमी को, एक प्लेयर को नहीं देख सकते. साथ ही साथ कई सारे चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. डिफेंडर्स को देखना पड़ेगा, बॉल इक्विपमेंट को देखना पड़ेगा, गोल पोस्ट को देखना, कई सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. टाइम को देखना पड़ेगा. और स्पेक्टेटर्स चिल्लाते रहेंगे, कुछ कमेंट्स करते रहेंगे, वो सब रखना पड़ेगा अपने दिमाग में. तो बहुत आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ड्यूरिंग गेम सिचुएशन. एंड रीड गेम सिचुएशंस, व्हाट डाउन इज इट. सो गेम की जो स्थिति है उसको आप देखते रहना है. तो उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं. तो क्या पॉइंट चल रहा है, कितना समय बचा है, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए अभी आगे, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए कि क्या होने वाला, क्या करना है अभी. आप you are the person who will have to decide and adjust to the situation. ये बहुत जरूरी बात है. आप उसमें एडजस्ट होना है. और अलर्टनेस, मैंने जो आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो आपको हमेशा अपना दिमाग और अपना तन, शरीर सब वहीं पे रखना है. एक सेकंड के लिए भी अगर आपका कंसंट्रेशन गया कहीं बाहर तो प्रॉब्लम समझो आ गई. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरीज, देखिए कबड्डी जैसे गेम्स हैं और कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स है, और कई सारे गेम्स में इंजुरीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में. सो उसको हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. ये आप कभी भी आप अपने दिमाग में रखिए. प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल्स कैन डू इट. दे कैन डू देयर पार्ट वेरी वेल. यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजंस, हमेशा एक रूप का डिसीजन होना चाहिए. स्टार्टिंग में अच्छा डिसीजन दिया, बाद में इंटरेस्ट कम होता गया ऑफिशियल का, ये नहीं होना चाहिए. स्टार्टिंग से अंत तक, अगर 90 मिनट्स का गेम है, 70 मिनट्स का गेम है, जो भी है, 1 घंटे का गेम चल रहा है, तब भी आपको एक ही तरह का डिसीजन देने चाहिए. यूनिफॉर्म होने चाहिए डिसीजन. अनइंटरप्टेड, अबाधित होना चाहिए. और गेम को ठीक तरीके से
चलने के लिए छोड़ना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बात पे आप इंटरप्ट कर रहे हैं, गेम का फ्लो खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि स्पेक्टेटर को भी बहुत गलत लगेगा, प्लेयर्स का फ्लो भी, प्लेयर का टेम्पो भी खराब हो जाएगा, इस वजह से उनका मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो ऑफिशियल्स का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो प्लेयर्स का मैक्सिमम परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस उस दिन उस जगह उस ग्राउंड में बाहर आए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस अबाउट पोजिशनल प्ले। तो कई सारे गेम में पोजिशनल प्ले होते हैं, जैसे वॉलीबॉल में लिब्रो, आपको पता है लिब्रो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें बहुत जरूरी है। हैंडबॉल में गोलकीपर, वो उनको आपको पता रहना चाहिए वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। विजिल व्हेन यू आर श्योर, देखिए बार बार विजिल करके गेम को रोकिए नहीं, फिर उसको स्टार्ट करना या फिर गलती मान लेना, वो सब ठीक बात नहीं है। सही समय पर विजिल कीजिए, जब जरूरी है तभी विजिल कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड मूवमेंट, as it has been mentioned earlier, he has to move, he has to keep moving, except in certain games, like even in volleyball, second referee moves, if you have observed, he will not stand near the post, he will be moving here and there, he will be on the non-serving side, non-receiving side, he will be on the receiving side of the court. So कई सारी चीजें हैं, और जो मूवमेंट है ना उसका मतलब एक, जब वो सही तरीके से मूव करता है तो उसको एक अच्छा एंगल मिलेगा, गेम का अच्छा व्यू मिलेगा, और डिसीजन लेने के लिए बहुत सहायता होगी। आप अगर वहां लेजीनेस करेंगे तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम को आप न्योता दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक रहे तो आपसे बात करने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ आपका डिसीजन सभी मानेंगे अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शारीरिक हाव भाव और गुडविल, क्रिएटिंग गुडविल। सो एक सद्भाव क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि आप सबसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आप सबसे झगड़ा करने के मूड में हैं, या फिर आप किसी को भी केयर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। सबसे एक सद्भाव रूप से आपको बात करना, व्यवहार करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, गेम एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल आप हमको पता है टेक्नोलॉजी आया है असिस्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं लेकिन हमारे ग्रास रूट लेवल में, जोनल लेवल में, तालुक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सब चीजें हमको देखने मिलेंगी कि नहीं हमको पता नहीं, या फिर एक कुछ साल बाद वो आ जाएगा मेरे ख्याल से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव a bit of knowledge of all these things. Technology that is assisting officiating. So officiating के लिए जो असिस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उनके बारे में कम से कम जानकारी आपको होनी चाहिए, एटलीस्ट उनके नाम सुन लेने चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो आप सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल में उसको डालिए और देख लीजिए क्या है, क्योंकि कल कुछ दिन बाद आपको हैंडल करने का मौका मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज से 3, 4 या 5 साल बाद हर कोई टूर्नामेंट में ये टेक्नोलॉजी होके ही रहेगी, उसको इन्वॉल्व करके ही रहेंगे, क्योंकि आजकल पैसा है, ज्यादातर टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रहा है भारत में, और पैसा भी बहुत आ रहा है स्पोर्ट्स गेम्स चलाने के लिए। इस वजह से टेक्नोलॉजी हर जगह आएगी, हर स्टेडियम में आएगी, हर प्लेग्राउंड में आएगी। सो इस वजह से आपको इससे दूर नहीं भागना है, ये नहीं सोचना है कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप गूगल में जाएंगे, उसको देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, और उसको हैंडल करने का थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे, और उसके बाद उसको सक्सेसफुली हैंडल भी करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड हैव ए राइट माइंडसेट टू यूज ऑल दीज थिंग्स। सो वीडियो तकनीक जो है इसको ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं अभी ऊपर के स्तर पे, लेकिन नीचे के स्तर पे भी वो आएगा। और मैं आपको यहाँ एक छोटा सा लिस्ट देने जा रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी असिस्ट कर रही है ऑफिशिएटिंग के लिए, उसका एक छोटा सा लिस्ट देने वाला। एक एक्चुअली एग्जॉस्टिव बहुत लंबा है लिस्ट है, लेकिन कई मिनिमम चीजें मैं आपको बता देने वाला हूँ। और आप सुने भी होंगे पहले, एक हॉकआई है, आप जो क्रिकेट देखते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है तो वहां पे, या टेनिस देखते हैं तो आपको पता रहेगा। वीडियो रेफरी, सो एक थर्ड अंपायर करके हम क्रिकेट में बोलते हैं, वो रिप्ले को देख के डिसीजंस देते हैं। तो ये सब आने की वजह से रॉन्ग डिसीजंस आना कम हो गए हैं। एक और है इरकोस, वो है ज्यादातर इसको जिम्नास्टिक्स में यूज किया जाता है, इंस्टेंट रिप्ले एंड कंट्रोल सिस्टम। सो वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ मूवमेंट्स हो जाते हैं, सब्जेक्टिव जजमेंट देना पड़ता है, तो वहां पे ये यूज होता है। और फोटो फिनिश, हम लोगों को पता है एथलेटिक्स जैसे स्प्रिंट इवेंट्स में बहुत क्लोज फिनिशिंग होता है, तो
गलती को सुधारने के लिए या फिर ऑफिशिएटिंग का एग्जैक्ट रिजल्ट देने के लिए या फिर वेरी एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए हम फोटो फिनिश यूज करते हैं। और एक है स्निकोमीटर, क्रिकेट में एज को जानने के लिए या फिर बैट पैड को जानने के लिए यूज करते हैं। UDRS है, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये सब हमको पता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइन जज, सो ये भी हमको पता है, हमने सुना होगा इसके बारे में। गोल लाइन टेक्नोलॉजी ज्यादातर फुटबॉल में या फिर हॉकी में यूज किया जाता है, हैंडबॉल में यूज किया जाता है, whether the ball has entered the goal post or not, all these things. RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स, इसको बॉल में डालने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से हो भी गया होगा अभी। और कई अभी क्रॉस कंट्री रेसेस में, मैराथन रेसेस में उनका जो रूट है, जो प्लेयर्स को ट्रैक करने के लिए, रनर्स को ट्रैक करने के लिए इसको यूज करते हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गैजेट्स, कोई स्विमिंग इवेंट्स में या फिर कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में, उधर सब ये आ चुके हैं। उधर मतलब बहुत माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, ऑफिशियल का काम थोड़ा इजी करने के लिए ये सब लाया गया है। हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसको यूज करने के लिए हमको माइंडसेट भी रेडी कर लेना चाहिए। आफ्टर गेम, खेल के पश्चात क्या करना है हमको, खेल के बाद में हमको ऐसे ऑफिशियल क्या करना है, वी हैव टू कांग्रेचुलेट द विनर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको जो जीते हैं उनको बधाई देना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू डोंट नेग्लेक्ट द लूजर्स, उनको भी जाके धन्यवाद देना है। अच्छा प्रदर्शन दिया, उनका हौसला बढ़ेगा, आगे के दिन में वो अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। आपका एक छोटा सा विश उनको बहुत ज्यादा मायने रखेगा। सिग्नेचर ऑन स्कोर शीट्स, ये हमको पता है, हमारा ड्यूटी है। और कोऑपरेशन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, जब संघर्ष होता है या फिर कोई निवेदन लेके आता है कि हमको डिसीजंस ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं लगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, विरोध प्रदर्शन होता है कभी कभी, ऑफिशियल्स के डिसीजंस को मानने के मूड में नहीं रहते हैं कोचेस, तो कभी प्रोटेस्ट भी आ सकता है। उस दौरान हमको कोऑपरेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो हम पर्सनली ले लें, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी हमसे भी मिस्टेक, टू एरर इज ह्यूमन, वी हैव हर्ड दैट, so there are chances for mistakes, so we should take it in a positive sense, that is very important. डोपिंग का जो प्रोसेस रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, कभी हम स्टेट लेवल या नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में जाएंगे ऑफिशिएटिंग के लिए, तो हमको वो समझ लेना चाहिए और उस वहां पे भी हमारा कोऑपरेशन होना चाहिए। कंफर्मिंग द रिजल्ट्स, सिग्नेचर करना या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने से रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, सबसे जरूरी बात, आप एक टूर्नामेंट में या फिर एक मैच में आप ऑफिशिएटिंग करने के बाद आप एक जगह पे बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ आप अकेले बैठ जाइए और सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या किया मैंने, या मैंने कुछ ठीक किया कि गलत किया, और मैं कहाँ सुधार सकता हूँ। सो वो सब स्वयं विश्लेषण कीजिए, अपने रिजल्ट के बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में स्वयं विश्लेषण कीजिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये और भी आगे हमको बढ़ना है, और ज्यादातर टूर्नामेंट और ज्यादा टफ सिचुएशंस हमको देखने हैं। इस वजह से आप आत्म विश्लेषण कीजिए, सिट अलोन एंड रिफ्लेक्ट, यू just keep your mind calm and think what you have done in the particular match, in that particular match, and then you just see the scope for improvement, that is very important. Next, you seek feedback from fellow officials, from your seniors, or from anyone whom you trust. Seek feedback from them, that is very important. आप feedback लीजिए, प्रतिपुष्टि लीजिए। और dealing with athletes who fail in doping, कई बार क्या होता है, डोपिंग में फंस जाते हैं खिलाड़ी, तो उनके साथ भी हमको ठीक तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। सो ये सब चीजें आफ्टर गेम में आती है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, देखिए एथिक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया, ज्यादा पैसा आ रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, प्राइज मनी होता है, कहीं जॉब के लिए होता है, कहीं सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो क्या होता है, ऑफिशियल्स कई बार, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझिए, कुछ ऑफिशियल्स जो है वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो बहुत गलत बात है। सो एथिक्स को अपने दिमाग में रखिए, नैतिक रूप से आप अपना काम कीजिए, या फिर आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। सो उन सब को अगर दूर रखना है, आपकी अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, अच्छा नाम चाहते हैं, हर कोई आपको बुलाए, ऐसा आपका अगर इंटेंशन है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आप जरूर
नैतिक रूप से अपना काम कीजिए, वो बहुत जरूरी है। नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा इधर दी गई है, तो इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। आस्क योरसेल्फ व्हाट द डिलेमा इज एंड गेट द फैक्ट्स। अगर कोई सिचुएशन आ गया, ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं आप, सो आस्क योरसेल्फ व्हाट द डिलेमा, कंफ्यूजन क्या है, ये इधर कहाँ पे दुविधा है, क्या दुविधा है, व्हाट द डिलेमा, दुविधा क्या है, और उस दुविधा के बारे में आप जितना जानकारी हो सके उतना लेने के लिए कोशिश कीजिए, बातें कीजिए, फेलो ऑफिशियल से बात कीजिए, रीएनालाइज कीजिए, वो बहुत जरूरी और अच्छा डिसीजन लेने के लिए वो बहुत आपको सहायता करेगी। कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिकॉग्नाइज इन योरसेल्फ। सो वैल्यूज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ऑफिशिएटिंग करते हैं आप, सो वैल्यूज को आप हर बार अपने दिमाग में रखिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो अपने वैल्यू के हिसाब से आप ऑफिशिएटिंग कीजिए। इट इज टाइम टू जज योर ऑप्शंस एंड मेक ए डिसीजन। सो आपके सामने ऑफिशिएटिंग के दौरान आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो उन ऑप्शंस को आप मध्य नजर रखिए, आप उनके बारे में गौर कीजिए, ऑप्शंस के बारे में, फिर एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए। सो मुझे पता है, हम सबको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हर बार एक सही निर्णय आए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, चौथा जो विषय है, कमिट टू योर एक्शन। एक बार आपने कुछ एक्शन कर दिया या फिर कोई डिसीजन ले लिया, सो आप उसको स्टिक ऑन हो जाइए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उसको चेंज करेंगे या उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, कई बार हो जाता है मैं एक रॉन्ग डिसीजन दे देता हूं, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ओपोनेंट के तरफ में एक रॉन्ग डिसीजन दे देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बैलेंस हो जाएगा, नहीं, सिचुएशन और बिगड़ जाएगा। मैं बोलता हूँ आपका जो रेपुटेशन है और खराब हो जाएगा। इस वजह से आप अगर एक डिसीजन ले लेते हैं तो उसको स्टिक ऑन कीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेंगी। तो बहुत जरूरी है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑफिशिएटिंग। अगर आपका ऑफिशिएटिंग बहुत अच्छा होना है, if you want your officiating to be very effective, what are the things, प्रभावपूर्ण ऑफिशिएटिंग के लिए आपको क्या टिप्स फॉलो करने हैं? कम्युनिकेशन विथ पार्टिसिपेंट्स। सो दिस आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पार्टिसिपेंट्स, विथ प्लेयर्स। सो हर बार हमारा सिग्नल्स जो है वो फर्स्ट रिसीवर जो है हमारे खिलाड़ी होते हैं। हमारा जो भी विजिल हो, हमारा जो भी है सिग्नल्स हो, हमारा जो भी डिसीजंस हो, हम जो भी बात करते हैं तो पहले पहुंचता है प्लेयर्स या खिलाड़ियों के तरफ। और दूसरा जो है उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन रहता है कोचेस के साथ। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फेलो ऑफिशियल्स, दैट इज आल्सो ए वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कम्युनिकेट एटलीस्ट थ्रू आवर आईज। एक आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए हर किसी फेलो ऑफिशियल्स के साथ। तब क्या होगा, दुविधा नहीं आएगी, डबल डिसीजंस नहीं आएगा, फिर उसको रेक्टिफाई करने का कोई अवसर भी नहीं आएगा। इस वजह से आप ठीक से फेलो ऑफिशियल्स के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखिए। और वॉलंटियर्स जो है उनको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कुछ गेम्स जैसे बॉल गेम्स में बॉल भागता रहता है, उसको ले आना पड़ता है, वॉलंटियर्स का काम है। या फिर बॉल रिट्रीवर्स बोलते हैं, कुछ तभी तो ठीक से गेम चलेगा। सो वॉलंटियर्स के साथ भी प्री गेम सिचुएशन में आप अच्छा सा एक रैपोर्ट बना लीजिए, तब आपको बहुत कोऑपरेशन करेंगे। और हमको पता है, मैंने इससे पहले बताया, पेरेंट्स या गार्डियंस भी आ जाएंगे प्लेयर्स के साथ, सो उनके साथ भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्पेक्टेटर्स, हाँ, माना कि हम बात नहीं करेंगे, स्पेक्टेटर्स से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बना रहता है उनके साथ भी। सो उसको भी आप नजरअंदाज मत कीजिए, उसको आप अपने गमन में रखिए। और ऑर्गेनाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय उनका भी हमको हेल्प चाहिए होता है, सो उनसे भी अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखिए, तब हम कई सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। उनका सपोर्ट हमेशा जरूरी है हमारे लिए। सो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है? वॉइस, जो आप बात करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। सो एक अथॉरिटेटिव होना चाहिए, मतलब आप कंफ्यूजन में या फिर दुविधा में बात मत कीजिए, कॉन्फिडेंट तरीके से वॉइस आपका रहना चाहिए। विजिल, बात करने का मौका बहुत कम आता है खेल कूद में, आपको पता है, सिर्फ विजिल में या फिर संकेत से हम बात करते हैं।
विजिल, आपका विजिल जो है, नो हाउ टू विजिल फॉर ईच पर्टिकुलर गेम। तो अलग अलग गेम में अलग अलग तरह का विजिलिंग आता है, कहीं डबल विजिल आता है, कहीं ट्रिपल विजिल आता है, कहीं थोड़ा लंबा विजिल आता है, वो सब आप समझ लीजिए, वो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिकेशंस, सो इंडिकेशंस, कम्युनिकेटिंग ए डिसीजन नॉन वर्बली। सो आप बातें किए बिना, 90% हमारा कम्युनिकेशन इसी तरह से होता है। तो बातें किए बिना हमारा डिसीजंस, गेम चलता रहता है, एंटायर गेम कुछ ऑफिशियल्स एक वर्ड भी अटर नहीं करते, ये भी पॉसिबिलिटीज है। इस वजह से आपका इंडिकेशन, आपका सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सिग्नल के बारे में जानकारी आपको ज्यादा होनी चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज, सो देह का हाव भाव, सो वो भी बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया, कम्युनिकेटिंग ए फीलिंग और इमोशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। और अगर कोई संघर्ष का सिचुएशन आता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक क्लियर वॉइस होना है, अप्रोप्रिएटली चूजन वर्ड्स, देखिए टेक्निकल वर्ड्स यूज कीजिए हमेशा, कोई लेमैन का वर्ड्स मत यूज कीजिए, सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स जो रूल बुक में है उसको आप यूज कीजिए, तभी आपका ये उनका हेडेक है, उनको आता है कि नहीं, उनको समझ में आता है कि नहीं, ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कीजिए, वो बहुत जरूरी है। ए फर्म मैनर, मैंने आपको बताया, एक बार डिसीजन लिया, फर्म रही है, उसको चेंज करने का कोई भी आप चांसेस मत लीजिए। मैं बोलता हूँ डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिए, थोड़ा लेट कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत लेट नहीं करना है, बहुत लेट करेंगे तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो 1-2 सेकंड लेट कीजिए, लेकिन डिसीजन देने के बाद उसको चेंज मत कीजिए। लुकिंग एट दी पर्सन, अगर आपसे कोई बात कर रहा है खिलाड़ी, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, बात कीजिए, आंसर दीजिए, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sufficient strength of voice to convey the message so that participants are able to hear the decision. So voice strength भी होनी चाहिए, जोर से भी बात करना है, सिर्फ कप्तान नहीं, सिर्फ कैप्टन नहीं, अन्य लोगों को भी वो सुनाई दिया तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। वरना आप कैप्टन को बताएंगे, कैप्टन दूसरों को बताएगा, पता नहीं वो क्या बोलेगा, वेदर वो कन्वे होते हैं कि नहीं, वो भी वो बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको गमन में रखनी चाहिए। और एक बात आपको जरूरी समझ लेनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अंडर स्क्रूटिनी। हर बार आपका जो एबिलिटी है वो बाहर आता रहता है, आपका जांच होता रहता है, आपका एबिलिटी का जांच होता रहता है। सो आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने का सामर्थ्य जो है वो उसका जांच होता रहता है। तो इस वजह से आप क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीनली, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सूक्ष्म रीति से देखिए, बहुत ऑब्जर्व करते रहिए, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते रहिए। यूज एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस यूज कीजिए। आपको ये सिचुएशन बहुत कई बार आए होंगे, आपके दिमाग में रहा होगा, सबकॉन्शियस माइंड में, उसको आप यूज करके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे आपने वीडियो देखा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन प्रिटेंशन करते हैं, नाटक करते हैं, वो भी बहुत चांसेस है। और किसी प्लेयर का गलती ही नहीं है, हाथ उठा के खुद ही मार रहा है अपने मुंह के ऊपर, देखिए ऐसा सिचुएशन हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि उसने मारा है, या फिर बहुत एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा इधर। नो द रूल्स थोरोली, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नो द टर्मिनोलॉजीज, जो वर्ड्स जो है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली आप उसको समझिए, उसको ध्यान में रखिए, वो बहुत जरूरी है, वर्ड्स दिमाग में रखना जरूरी है। मास्टरी ओवर सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स वेरी इंपॉर्टेंट, किस सिचुएशन में कौन सा सिग्नल देना है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर गलत सिग्नल दे देते हैं तो स्पेक्टेटर्स को कई बार सिग्नल्स के बारे में जानकारी रहती है, कोचेस को तो रहती है। आपका हर सिग्नल जो है वो देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा। सो इस वजह से ठीक सिग्नल दीजिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देखा हूँ, खेलते हुए भी देखा हूँ, और जैसे एज ए स्पेक्टेटर आल्सो आई हैव ऑब्जर्व्ड, कुछ और होता है और ऑफिशियल कुछ और सिग्नल दे देते हैं। माना कि पॉइंट ये टीम को ही मिलना है, लेकिन फॉल्ट कुछ और दिखा देते हैं, ये बहुत गलत बात है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी अबाउट नेचर ऑफ स्पोर्ट, तो कुछ गेम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, कुछ नेट के इस तरफ उस तरफ खेले जाते हैं, नेचर होता है। तो उस नेचर ऑफ द स्पोर्ट का भी आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। रिदम एंड टेम्पो, सो जो गति से चल रहा है गेम उसको चलने दीजिए,
स्लो मत कीजिए, जब वो गति से चलेगा ना तभी उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आ जाएगा। एंटिसिपेशन, सो कुछ हमको एंटिसिपेट करना है, हाँ है, अभी मैंने अगर विजिल नहीं मारा तो उसका एंकल ट्विस्ट हो जाएगा, या फिर कुछ स्ट्रगल होके उसका मुंह या फिर दांत चला जाएगा, नाक पे चोट पड़ेगी, ऐसे एंटिसिपेट करना पड़ेगा कभी कभी। सो कुछ डिसीजंस को एंटिसिपेशन के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब पूर्वानुमान से देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी, कितने पास से आप देख रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी रहता है। कुछ डिसीजंस आप सही दे सकते हैं जब आप पास खड़े होके देखें, तभी आपको ठीक से डिसीजन दे सकते हैं। सो हाउ नियर यू आर to that particular spot where that foul or violation is occurring, so that is very important. So you should be in a correct place, approximately, that is called actually proximity. Next is interdependence on fellow officials. So आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका गलती अगर आएगा तो वो सुधारेगा, अगर उसका गलती है तो आप सुधार सकते हैं। इस तरीके से एटलीस्ट ड्यूरिंग इंटरवल्स जो है तब आप डिस्कशन कर सकते हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हैं, ये आपको फीडबैक मिल जाए तो आगे का काम जो है वो ठीक हो जाएगा। फोकस, हमको पता है हमको फोकस रखना है, कभी भी फोकस को हटाना नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात है संघर्ष को निभाना, नीड टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ competition. As we all know, players will be training from many years. As you all know, in Olympics they are trained for last 4 years. In other sports, maybe for 1 year at least. In our national, state level or district level competitions, at least for 1 year they are being trained for a particular competition. And all of a sudden, when they come there, so there are chances of conflicts because they are very aggressive. You know, they are trained very hard. They shed lot of sweat. एंड आंखों में पानी आ जाता है ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी। सो वैसे ट्रेन होने के बाद जब वो आते हैं मैदान में, अगर उनको लगता है, उनके दिमाग के हिसाब से अगर उनको लगता है कि उनको गलत डिसीजन मिला तो वो संघर्ष के लिए उतर सकते हैं। सो ऐसे ऑफिशियल हमको क्या करना है, 2 चीजें करनी है, बहुत जरूरी है। एक है रिड्यूसिंग दी कॉन्फ्लिक्ट्स, जितना हो सके उसको नहीं होने से बचाना चाहिए, संघर्ष होने से बचाना चाहिए। कैसे? थ्रू इंटरनल फैक्टर्स। हाउ? थ्रू इंटरनल फैक्टर्स। आंतरिक अंश जो है उसमें क्या क्या आता है, मेंटल स्टेट, आपकी मानसिक स्थिति। अगर आप कूल रहेंगे तो मैं बोलता हूं, अगर आप शांत रूप से रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का है ये। मतलब थोड़ा वो होगा, आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे या फिर जो भी है, कोचेस है जो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो संघर्ष होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 हाथों से ही ताली होती है, हमको पता रहनी चाहिए। अगर आप हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। टाइमली बिहेवियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड। कभी कभी क्या हो जाता है, हमको पता है, पिछली बार बैंगलोर में जब एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी ने आके ऑफिशियल को मार दिया, उसको स्टैंड को हिलाया जोर से, वो पड़ने वाला था, गिरने वाला था। ये सब होने के चांसेस है। बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। लेकिन उससे बचना बहुत जरूरी है, उसको नहीं होने से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि वो डिसीजन सही था, वो समझता है कि वो डिसीजन रॉन्ग है। सो उसका जो मेंटल सेटअप है उसके हिसाब से आके वो रिएक्ट करता है। इस वजह से हमको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। और इग्नोरिंग क्रिटिसिज्म, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपके डिसीजन पे, सो आप उसको इग्नोर करना सीखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल, आप आर्ग्यूमेंट पे मत उतरिए, कभी भी मत उतरिए, कंट्रोल रखिए। और कोई भी अपना बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मत दिखाइए। एंड रिलायबिलिटी, सो उनको लगना चाहिए कि ऑफिशियल ही ठीक है, हमारा ही रॉन्ग था, ऐसे उनको आना चाहिए। नेक्स्ट इज थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपीयरेंस। सो आप अगर ठीक से अपना अपीयरेंस, आप कॉन्फिडेंट अपना अपीयरेंस दिखाएंगे तो ऑफिशियल्स आपसे बात नहीं करने आएंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर ही रखेंगे। हम लोग कई बार देखे हैं, ऑफिशिएटिंग करते करते उनको मोबाइल फोन में कॉल आ जाता है, तो अगर कॉल करते रहेंगे, सब करते रहेंगे, तो मैं बोलता हूँ बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे आपको। कोचेस या फिर पेरेंट्स या फिर स्पेक्टेटर्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। हमने देखा अभी एक वीडियो में, एक प्लेयर बॉल लेके खड़ा है, बाहर से किसी ने पत्थर मार दिया बॉल के ऊपर, या फिर जो भी है, बर्फ जो है, जो भी कुछ भी है,
उसको मार दिया है, ये सब होने के चांसेस हैं, बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को कम करना एक तरफ हो गया, तो संघर्ष को निभाना, उसको ठीक करना एक और तरफ है। सो उसको सेटलमेंट करना। सो एट द रैशनल लेवल इंक्वायर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, अगर एक डिसीजन पे सहमत नहीं है खिलाड़ियां, कोचेस, सभी कुछ एक माहौल क्रिएट हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, फेलो ऑफिशियल्स से डिस्कस कीजिए और जानकारी लीजिए, बातें कीजिए, और कुछ नहीं हो सका तो आप ऑब्जर्व साइलेंस, साइलेंस को ऑब्जर्व कीजिए, आप शांत रहिए, कुछ भी बात मत कीजिए, कुछ भी सिग्नल मत दीजिए, चुप हो जाइए। और एक बहुत जरूरी बात है, कुछ सिचुएशंस को आप ह्यूमर या हास्य से उसको निभा सकते हैं, मैं बोलता हूं ये बहुत इफेक्टिव भी है। और प्रैक्टिकल लेवल पे क्रिटिकली ऑब्जर्व, सबको ऑब्जर्व कीजिए, सबका चेहरा ऑब्जर्व कीजिए, या अगर दो खिलाड़ी इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दोनों का चेहरा देखिए, दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखिए, अच्छा क्रिटिकली आप ऑब्जर्व कीजिए। अवॉइड प्रॉक्सिमिटी विथ एनीवन, लेकिन देखिए अगर झगड़ा हुआ या फिर कोई माहौल क्रिएट हुआ, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप ये टीम या बी टीम किसी के पास जाके खड़े मत होइए, किसी से भी बात मत कीजिए, मैं बोलता हूँ सहानुभूति से भी बात मत कीजिए, या फिर कोई भी अच्छा या बुरा या न्यूट्रल रहने से भी आप किसी से बात मत कीजिए, किसी के पास मत खड़े हो जाइए, आप अकेले खड़े हो जाइए, आपका जो ग्रुप है उनके साथ खड़े हो जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक फॉर्मली, औपचारिक रूप से आप बात कीजिए, और कुछ भी लूज टॉक्स को कोई स्कोप मत दीजिए, सिर्फ आप औपचारिक रूप से बात कीजिए। टॉक टू द पॉइंट, डोंट गो फॉर एनी लूज टॉक्स, don't give any unnecessary explanations, be very formal, that is very important to settle the conflicts. Next is ethical responsibilities, नैतिक जिम्मेदारी, हमने इसके बारे में अभी ऑलरेडी बात किया है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑफिशियल्स, ऑफिशियल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं खिलाड़ियां, कोचेस, पेरेंट्स, ऑफिशियल्स, सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रस्टवर्थी, भरोसेमंद हो, एक ऑफिशियल भरोसेमंद हो, रेस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, और वहां पे प्रिपेयर फॉर देयर रोल, उनका रोल अच्छे से निभाए, अपना पात्र जो है वो अच्छे से निभाए, उसके लिए फिजिकली एंड मेंटली वो रेडी है, ये सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंट, सक्षम हो, समर्थ हो, इसको जानकारी है, पहले से ये खेला हुआ है थोड़ा बहुत, इसको ज्यादा है, इसको ज्यादा जानकारी है, हमसे ज्यादा जानकारी है, सक्षम है, समर्थ है, ये एक्सपेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स से। और दूसरों के साथ काम करने के टाइम में वर्किंग विद अदर्स क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। कोऑपरेट विद कलीग्स एंड अदर्स, कलीग्स जो है आपके सबऑर्डिनेट्स जो है वो हमेशा आपसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, सो आपको कोऑपरेशन देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कभी भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए पब्लिक में आपके अपने फेलो ऑफिशियल्स से, वो बहुत जरूरी है। सहयोगियों से अच्छे से बर्ताव कीजिए, और कम्युनिकेट विद कलीग्स एंड अदर्स, उनसे बात करते रहिए। मैंने जैसे बोला आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। शेयर विद कलीग्स एंड अदर्स, उनके साथ चीजें शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बातें शेयर कीजिए। सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को आप सपोर्ट करते रहिए, आधार सहयोग देते रहिए, वो बहुत जरूरी है। और अंत में आता है रिपोर्टिंग। हमको पता है रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशंस प्रोवाइड मैसेजेस, सो समटाइम्स रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे हमको, ऑर्गेनाइजर्स को या फिर जूरी ऑफ अपील को, या जो भी है। Information and feedback to a wide range of people in sporting, and we know that we are accountable to many people, higher ups or organizers or jury of appeal or many things, or even federations sometimes. An important task of many officials is to complete a report after the competition के बाद, स्पर्धा के बाद हमको एक रिटर्न रिपोर्ट देना चाहिए, और वो रिपोर्ट जो है वो हॉनेस्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इट शुड बी हॉनेस्ट, इट शुड बी रेस्पेक्टफुल, सभी उसका आदर करें। इट शुड बी ट्रस्टवर्थी, सब उसके ऊपर ट्रस्ट करें। इंटीग्रिटी इन रिपोर्ट डिलीवरी, सो उस रिपोर्ट को हर कोई माने, इस तरह का आपको रिपोर्ट बनाना है। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में फिर से इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब आ चुके हैं। देखिए, बी इम्पार्शियल, इम्पार्शियल होने से आपका, तटस्थ होने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके
ऑफिशिएटिंग के दौरान। बी कंसिस्टेंट, एक रूप का डिसीजन देते रहिए। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता से आप काम कीजिए। कोई बयास नहीं होना चाहिए, कोई लगाव नहीं होना चाहिए प्लेयर्स से, कोचेस से, बहुत डेंजरस है। वो आप अपने ध्यान में रखिए। कर्टियस, सो आप सभी से अच्छा व्यवहार कीजिए, सद्भाव रखिए। अवॉइड एनी सिचुएशन विच में बी परसीव्ड एज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। किसी भी सिचुएशन दूसरों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कॉम्प्रोमाइज किया है या बिका हुआ है। देखिए ये सब होने के चांसेस हैं बहुत, तो ऐसा कोई, या फिर कोई टीम को सपोर्ट करेगा, कर रहा है, ऐसा आने का कोई चांसेस मत छोड़िए। अगर कोई ऐसा बात करता है तो आप पीछे हट जाइए, ऑफिशियलिंग मत कीजिए, दूसरों को दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। और फिर आपके ऊपर लगा हुआ वो कलंक जो है उसको मिटाने की हर कोशिश में लगे रहिए, मैं बोलता हूँ, वरना आपका करियर एंड हो जाएगा। बहुत डेंजरस है, इस वजह से ऐसा सिचुएशन आने ही मत दीजिए। एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल एक्शंस टेकन। आप जो भी एक्शंस लेते हैं उसका फुल जिम्मेदारी लीजिए। इफ यू मेक ए मिस्टेक, एडमिट इट। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने देखा फीफा वर्ल्ड कप में भी गलती हो सकती है, तो आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। To err is human. We may make a mistake, but you should have the courage to admit it. Condemn unsporting behavior. So कोई अनस्पोर्टिंग बिहेवियर करता है, कोई बॉल को जमीन पे जोर से मारता है, या फिर किक करता है, या फिर ओपोनेंट को घूरता है, या फिर हाथ लगाता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो वैसे बिहेवियर को हमेशा कंडेम कीजिए। एंड प्रोमोट रेस्पेक्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटर्स। जीता हारा, अच्छा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, सबको आप रेस्पेक्ट कीजिए, सबको आप अच्छे एक ही तरीके से देखिए। एम्फेसिस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का जो स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम बोलते हैं, उसको आप हमेशा अपहोल्ड कीजिए। कमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। आपको अगर कोई कमेंट करता है, आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए और आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए उसको यूज कीजिए। कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ऑफिशिएटिंग। सो क्या आ रहा है, नया चीज क्या आ रहा है, उसके बारे में आप देखते रहिए, सोचते रहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके लाभ लेने वाले हैं, वो है स्पोर्ट्स पर्सन्स या फिर यंग पीपल। सो उनको आप मद्देनजर रखिए, हमेशा उनके बारे में सोचिए, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आने के बारे में सोचते रहिए। Place the safety and welfare of the athletes above all else. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सुरक्षता, उनका सुरक्षता और उनका कल्याण, प्लेयर्स का कल्याण जो है उसको आप हमेशा दिमाग में रख के काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अंत में एक बात हम बोलना चाहते हैं, एक गुड ऑफिशियल, एक अच्छा ऑफिशियल कौन है? पोसेसेस राइट स्किल्स। जो कौशल्य जरूरी है वो उसके पास रहेंगी। एंड एटीट्यूड टू परफॉर्म प्री गेम्स, ड्यूरिंग गेम्स एंड पोस्ट गेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। खेल के पूर्व, खेल के दौरान और खेल के बाद जो उसका जिम्मेदारी है उसको निभाने का एटीट्यूड जिसमें रहता है, वही एक अच्छा ऑफिशियल है। एक्ट्स लाइक ए न्यूट्रल पर्सन। तटस्थ व्यक्ति होता है वो, किसी गेम में किसी को भी वो नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा या फिर बायस नहीं होगा। एंड गिव्स डिसीजंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। वो अपने रूल्स के दायरे से बाहर नहीं जाएगा, कभी भी रूल्स के अंदर ही अपना काम करेगा। कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली। परिणामकारी तरीके से वो संवहन करेगा और वस्तुनिष्ठता से अपना व्यवहार करेगा। तो कभी भी वो फीलिंग नहीं रखेगा किसी टीम के प्रति या फिर किसी खिलाड़ी के प्रति या किसी गांव के प्रति या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति या फिर किसी भी कोच या किसी के प्रति कोई अपना ये नहीं रखेगा, फीलिंग्स नहीं रखेगा। मैनेजेस कॉन्फ्लिक्ट्स वेल। मैंने बताया आपको, हार्मोन्स बहुत ज्यादा तरीके से बाहर आते रहते हैं जब वो मेहनत करता है, वार्म अप रहता है, तो एग्रेसिवनेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रहता है खिलाड़ियों में। सो संघर्ष होना बहुत कॉमन बात है, तो उसको ठीक से निभाएगा, वही एक अच्छा ऑफिशियल है। ये नहीं कि खेल के अंत में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, ये सब कभी भी नहीं होना चाहिए। ही इज एथिकल। मैंने बताया आपको, नैतिक रूप से वो ठीक रहेगा। फेयर, अपराइट एंड टैक्टफुल। हमेशा वो दबाव में भी अच्छे से काम करेगा, सीधा डिसीजंस लेगा और व्यवहार कुशल रहेगा। मतलब कोई भी सिचुएशन आए
उसको ठीक तरीके से वो निभाएगा। ये सब चीजें ऑफिशियल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको सुना है, आपको कोई डाउट्स अभी आए हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपको बताया गया है, आप चैट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। ओवर टू द ऑर्गेनाइजर्स। Thank you very much, sir. Yes. A few questions are there, sir. Really, this presentation is appreciable one. Thank Like you. this is like it is in purely a Hindi. Thank you. Participants, I want to tell you that sir is very familiar with many languages, and he can deliver same type of presentation in other languages, especially in English, Hindi, Kannada, Tulu, Telugu, and even in Tamil also. He is very familiar with these languages, and he is very confident in presenting same type of topics in different languages also. So this session, what I felt is most of in chat box I have seen most satisfiable answers are coming, sir. They are very happy when you have used this Hindi as a communication language for this presentation. Yes, Usually sir. what happens, most they prefer, but because of percentage wise, most of resource persons are presenting in English, but today it is purely a Hindi. I believe that you are not part of a Karnataka, you are part of whole India. You're very familiar with the Hindi accent, everything was very executive one. Thank So you. a few Thank you. questions are there, please, sir. Please, You sir. can stop sharing that PPT, sir. Stop Okay. sharing, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I'll be very happy to answer the questions. Yes, sir. Sir, question is from Sudarshan, sir. I hope he is from school, I think. Most Yeah. of what happens at an state or an international level, officiating, he feels it is very easy. When it comes to in rural places or at a school level, it is very difficult, he says, because people are not very familiar with these rules and regulations, and it is very difficult to identify who is a player or who is a spectator, because there it is very difficult. So in that situation, how to handle as a official, sir? Yes, sir. That was the question. My entire presentation was focused on grassroots level officiating. Actually, I did not focus much on state and international level officiating. As that participant has rightly mentioned, people are aware of the rules and regulations. They are abreast of the latest rules changes and all these things. So for that reason, there won't be much problem there. But when it comes to grassroots level, when it comes to zonal or taluk level, what happens is people are not very clear about the rules and regulations. So as I mentioned in my presentation, there is a need for educating people around us. That is very important. Most importantly, you educate the physical education teachers, and keep a workshop, 2-day or 1-day workshop before the competition, so that they carry the message and they pass it on to students or players. That is very important. They, at least if players are clear, they will not argue or they will not intervene into the decisions of officials. So when players don't argue, when players don't revolt against the decisions, automatically spectators will keep quiet. That is one approach we can follow. And second approach that we can do is we will have to take the help of the organizers. Organizers have to take every care for the safety of players as well as officials. So that point has to be made very clear, and it has to be brought to the attention of organizers. So some sort of either security or police or some arrangement can be done. That has to be looked after. Otherwise, it will be very difficult at that particular level. So one more question from Senti Song Long Kumar. He asked like, what are some of the prerequisites for developing consistency in officiating, especially when it is for a longer time? How to maintain this consistency? So only answer for this question is experience. No other way out. So you keep on officiating, you gain experience day by day, learn from your mistake and learn from others' mistakes as well.
So this is what I can say. Experience cannot substitute anything else. He may read, he may attend workshops, or he may do many things. But when he goes, when he obtains the practical experience of officiating, only then he can improve his officiating day by day. And one more question is from a same person, Long Kumar. Sir. He asked that whether technology brings a credit or any other things happens, because when referees and official are dependent, yes, I accept that exact uh, clarity will be there, but apart from that, the dependability of on officials also reduces there. In such conditions, whether this credibility will be there for officials? Sir, one saying just I went through today morning is humans make mistakes and technology makes mistake obvious. So I'll repeat, humans make mistakes and technology makes mistake obvious. That means we should try to commit very less mistakes. That is one thing we can do. How we have went through the entire presentation and we have discussed about that, how to minimize the mistakes. So if you do mistakes and if technology is used, your mistakes become obvious. So but ultimately you will get right decisions. So nobody will be at the disadvantageous side. So when technology is used, that is the advantage, that only correct decisions come out, and the player who performs well will get the credit, of course. So it is better we make use of the technology in future days and minimize our mistake, and will make all righteous decisions. That is very important. One more question, anonymous it is, sir. Yes, sir. Any opportunities are there in officiating? He's saying like career opportunities, especially. Sir, my students, they have been very good players during their college days, but now during competition season, they are earning a lot of money, sir. So they go for competitions. They around one floodlight tournament, one night if they spend, they are earning not less than 2,000 rupees. I'll tell you. And every week they go for, every month they go for at least 8 to 10 such tournaments. Apart from their earnings, they get this additional earning also. So no need to get big certificates and all. No need to clear national level referee exams. Even with good experience, good decisions, if you are recognized in the field of sports, you can earn a lot of money and you can make a career out of it. Definitely, you can make a career out of it. Thank you, sir. Yes. In this panel, even Sujit Panigrahi, Fitness 365 CEO is there, sir, and he is a person who is behind this management of this programs also. So Yes, I welcome him. And Sujit sir, hello. Sujit sir, do you like to add for this program? Hello. Hello. Maybe he's on a phone call. Yes, sir. No problem, sir. So we are coming for a concluding part here, sir. So your presentation was so wonderful at us, and that too, especially in Hindi. When I have seen this chat box, so appreciable things it does, especially a wonderful one at us. And Thank sir, I feel and I hope that all participants are carrying this dense knowledge in their mind today, and they will apply all those things well while officiating this competitions. So, and for this program, you added some more colors, and you have bought some more feathers for this program to fly high and high. So, on behalf of LNCP, on behalf of Khelo India, and on behalf of our respected principals ministry, I thank you for your valuable opinions on this presentation, sir.